Good afternoon, everyone. Let's start with a new topic, Mendelian modes of inheritance, which studies how traits and disorders are passed across generations. Now, this mode of inheritance it is based on the experiment of Gregor Johann Mendel, an Austrian monk who studies how traits pass from one generation to the next in pea plants. And on the basis of his observation, he gave the principle of segregation and independent assortment, which later became the foundation for modern population genetics. Now, अब हम बात करते हैं उन basics की which are quite important for this topic. So first basic, we know that traits, physical features, characters, whichever name you call it, their expression it is dependent on the gene, underlying genes. So we are talking about in terms of genotype and phenotype. जो आप जानते हैं, phenotype is the external expression, the external appearance of any feature. Like जो हम देखते हैं, हेयर हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, आई कलर हो गया, और जितने भी लिम्स हैं, द होल बॉडी. तो ये सब जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फिनोटाइप. एंड देन ये जब जो जितने भी फिनोटाइप्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द जीनोटाइप, जी. और इन शॉर्ट, इफ आप लोग इसमें नए हैं तो आप ये जाने कि जितने भी फीचर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एन अंडरलाइंग जीन. नाउ अब जो जीन है, it is nothing but the sequence of DNA. And DNA is nothing but the repetition of nucleotide bases, the nitrogenous bases A, T, C, G. और उसी के बेसिस पे चेंज जो है उनके सेक्शंस जो हैं दे कोड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, और उसी सेक्शन को एक जीन बोला जाता है. नाउ ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एनी ऑफस्प्रिंग दे विल इनहेरिट वन कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट. ये पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग है, so one copy will be inherited each from mother and father, and that's why the gene exists in pair form. Now, अब pair form में exist करते हैं, then we are going to talk about a different category. Gene की ही बात कर रहे हैं, but the classification which is based on the priority of expression. Now, ये चीज तो हमने अभी just देखी है that the gene जो है, जीन वही एक्सप्रेस होके जो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाते हैं, जो फिजिकल फीचर्स देखते हैं, दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ अंडरलाइंग जीन. नाउ जीन में भी व्हेन वन कॉपी इज देयर फ्रॉम ईच पेरेंट एंड द जीन्स आर एग्जिस्टिंग इन पेयर फॉर्म, सो उसमें क्या उन पेयर के जो दोनों जीन्स जो हैं वो दोनों एक्सप्रेस होंगे. सो उसमें फिर ये नया क्राइटेरिया है, द प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो जीन्स हैं they are classified into two form, the dominant one and the recessive one. यानी जो जीन्स जो हैं उनमें भी कुछ जीन्स ऐसे हैं which are dominant, यानी अगर वो होते हैं, अगर वो उस पेयर में होते हैं then they will express. and recessive का ये है कि they will express only if they are in homozygous form. so अब इसका और आगे देखते हैं. So अभी जस्ट मैंने एक चीज कही कि recessives will express only if they exist in homozygous form. Now for the newbies, this thing might seem quite very complex, but it isn't it that way. The thing is, जैसे अभी आपको बताया कि जीन जो है they exist in pair form. Now जो जीन्स जो होते हैं they have certain variations, certain versions, या फिर in simple certain variants, और उन variants को हम बोलते हैं alleles. यानी same gene है, like for eye color. So let's say gene same है E, अब उसके different variants हैं या variations हैं या versions हैं, क्योंकि यहाँ पे ये mother and father दोनों से अलग अलग copy inherit होती है. सो ऐसे में ये जितने भी उसके वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल ऑफ देम दे आर नोन एज अलील्स और वेरिएंट्स. सो यहाँ पे अलील हम इनको बोलेंगे. नाउ ये जो पेयर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन द पेयर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. सो जो वेरिएशंस हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, वेरिएशंस आप उनको ऑल्टरनेटिव समझ सकते हैं. सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जीन A. So the dominant one will be capital A, the recessive one will be small a.
नाउ किस किस तरह से जीन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस किस तरह से वो पेयर एग्जिस्ट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कि जो जो पेयर के अंदर दोनों जीन हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों के दोनों डोमिनेंट है। नाउ द सेकेंड सिनेरियो कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, एंड द थर्ड सिनेरियो दोनों के दोनों रिसेसिव है। सो ये तीनों ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये तीनों विकल्प है, ये तीनों वेरिएंट्स हैं, और इन तीनों को बोलते हैं अलील्स। सो ये तीन अलील हमारे पास आए और इन तीनों के ही नाम है। जैसे अगर दोनों डोमिनेंट है, सो दिस वन विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। देन इफ एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, सो दिस वन विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एंड इफ दोनों रिसेसिव हैं, देन दिस वन विल बी नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव। So that's the categorization of alleles on the basis of priority of expression. So ये है इनके basics. And finally one more basic, which is जितने भी genes हैं, the 23,000 24,000 जितने भी genes हैं, वो सब के सब जो है they exist in 23 pairs, 23 condensed forms, और उन condensed forms को हम बोलते हैं chromosomes. So all of the genes they exist in 23 chromosomes, 23 pairs of chromosomes, और उस 23 pairs में से 22 जो है they are known as autosomes, and जो last pair है they are known as sex chromosome, और उसमें अगर डबल एक्स है तो this one will be female, and XY है this one will be male. So I guess आप लोगों को ये सारे बेसिक्स तो आते होंगे। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। Now we are going to start with the autosomal inheritance, which is the inheritance which is from the 22 pairs of chromosomes which are not the sex chromosome. तो अभी हमने देखा है कि 22 pairs जो हैं they are autosomes. So उस बेसिस पे अगर inheritance होता है, if the trait or disorder जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, अगर उसके जो अंडरलाइंग जीन्स हैं if they are located on the autosomes, then such inheritance will be known as autosomal inheritance. वापस फॉर न्यूबीज इसके लिए ये चीज दैट जितने भी जीन्स हैं सब के सब इन 23 पेयर्स में है। अब 23 पेयर्स में से 22 जो है वो ऑटोजोम्स हैं, वन जो है वन पेयर इट इज सेक्स क्रोमोसोम। नाउ जिस भी ट्रेट और डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उनके अंडरलाइंग जीन्स इफ दे आर लोकेटेड इन दोज 22 ऑटोजोम्स, देन वी विल कॉल इट ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ना उसमें फर्स्ट टाइप ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। सो डोमिनेंट वाला जो प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी आपको बताया कि इफ द ट्रेट वी आर टॉकिंग अबाउट और द अंडरलाइंग जीन वी आर टॉकिंग अबाउट, दोनों इफ दे आर ऑफ डोमिनेंट नेचर, देन हम जानते हैं कि उसका जो अलील प्रेजेंस जो है वो किस तरह से होगा। अगेन वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो इस तरह से होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट इनहेरिटेंस, यानी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये करते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर डोमिनेंट होता है, अगर डोमिनेंट वेरिएंट एग्जिस्ट करता है, देन इट विल एक्सप्रेस इररेस्पेक्टिव कि अगर वो एक है या दोनों पेयर है। सो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस भी ट्रेट या जिस भी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर वो जीन पूल के अंदर है, अगर उसकी एक भी कॉपी है, तो इट विल एक्सप्रेस, बिकॉज जिस भी ट्रेट की बात कर रहे हैं दैट इज डोमिनेंट, और डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा। The next feature that this dominant gene will overpower the other normal copy. So we are talking about the heterozygous group. This one. If this one, the dominant one, if it is a disorder and its other variant is a healthy copy, but since the disorder is dominant itself, so it will express irrespective कि other copy healthy है या नहीं है. So the dominant gene will overpower the other copy. So ये next basic है। उसके बाद dominant के inheritance के लिए सिर्फ एक कॉपी चाहिए। जैसे देख सकते हैं, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा, अगर वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, सिर्फ एक सिंगल कॉपी है, तो भी वो एक्सप्रेस होगा। सो इसकी वजह से नो जनरेशन इज स्किप,
हर जनरेशन के अंदर ये कॉपी इनहेरिट होती है। फिर since we are talking about the autosomal inheritance which is on the 22 pairs of non-sex chromosomes, so इसका मतलब है कि these traits will affect both male and females equally. So example देखते हैं, उसमें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा. So the first such disorder is achondroplasia. Now achondroplasia is a dominant disorder. यानी अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर, अगर किसी पेरेंट जनरेशन में मदर या फादर दोनों में से कोई भी अगर अगर उन वो कैरिंग द achondroplasia gene, then the offspring will suffer from it. The offspring will get that trait, that disorder expressed. So let me put it again another way. So if either of the parents carry this particular gene, and since this disorder is dominant, then that disorder will express in the offspring. फिर हम बात करते हैं कि ये डिसऑर्डर होता कैसे. So the disorder is from a mutation in this gene. So when this gene FGFR3, if this mutates, this becomes a dominant gene for expression of achondroplasia, which is simple. आपको ये जो इसके बेसिक्स देखने नहीं है, मैंने इंक्लूड किए हैं, बट आपको सिर्फ एक एग्जांपल में ध्यान रखना है कि achondroplasia जो है एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है. डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो उसकी सिर्फ एक कॉपी चाहिए, और वो मेल या फीमेल जिसके अंदर भी हो, मदर या फादर दोनों किसी के अंदर भी हो, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर वो इनहेरिट होगा और एक्सप्रेस होगा. सो देख सकते हैं, इफ अ चाइल्ड इनहेरिट वन म्यूटेटेड जीन दे विल हैव द कंडीशन, क्योंकि डोमिनेंट के लिए सिर्फ एक जीन होना काफी है. देन इफ दोनों कॉपी, इफ द चाइल्ड inherit both the dominant copies, so this condition becomes fetal. So ये इतना basics depth आपके लिए नहीं है. Then the second example, Huntington's disease, which is a neurodegenerative disorder. So यहाँ पे ये भी Huntington's disease जो है, it is also a dominant disorder, और उसमें जो HTT जीन है इसके अंदर म्यूटेशन के होने की वजह से या डिफेक्ट होने की वजह से इट बिकम्स डोमिनेंट, इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, एंड दिस डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंट नेचर इट विल एक्सप्रेस. और अगेन तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. अगर कोई डिसऑर्डर रिसेसिव होता है तो उसमें उसको एक्सप्रेस होने के लिए दो कॉपीज चाहिए, और वैसा बहुत ही रेयर होता है. लेकिन जब कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाता है देन उसके लिए फिर सिर्फ एक कॉपी ही बहुत है. और हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जीन के लिए दो ही कॉपी होती है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. यानी अगर दोनों पेरेंट में से कोई भी एक अफेक्टेड है, मदर या फादर कोई भी एक अफेक्टेड है, तो द चाइल्ड विल इनहेरिट इट. एंड सिमिलरली जो चाइल्ड है वो भी वो कॉपी जो है उसके अंदर, वो डिसऑर्डर जो है उसके अंदर रहेगा, और वो भी कभी पेरेंट बनेगा तो फिर वही उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर वो चीज जाएगी. सो दिस बिकम्स मल्टी जनरेशनल डिसऑर्डर, मल्टी जनरेशनल डिसफंक्शन. बाकी सिम्टम्स जो हैं आपके अपने कन्वीनियंस के लिए याद कर लीजिए. अनकंट्रोल मूवमेंट, मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी चेंजेस, और यही जो है अकॉन्ड्रोप्लाजिया में शॉर्ट लिम्स, लार्ज हेड, नॉर्मल टॉर्सो, ये सब. Fair. Now the key feature of autosomal dominant inheritance, first equal occurrence in both. And the next thing कि ये जो डोमिनेंट इनहेरिटेंस है इट इज क्वाइट रिस्की, बिकॉज सिर्फ एक कॉपी की वजह से भी ये जो डिसऑर्डर है इट कैन बी ट्रांसमिटेड. जो लिखा हुआ है, इफ वन पर्सन इज अफेक्टेड हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो भी द चाइल्ड विल इनहेरिट द ट्रेट, एंड देन दिस इट विल बिकम अ मल्टी जनरेशनल थिंग. Then we are going to proceed to autosomal recessive inheritance. Now recessive के अंदर ये है कि a person, an offspring must inherit two copies of the recessive gene, one from each parent. So यहाँ पे दोनों copies होंगी. जो ये वाली condition है that's a homozygous recessive. अगर ये condition होती है तभी वो disorder जो है वो express होगा. Otherwise heterozygous condition में, यानी इस condition में वो express नहीं होगा. Now, the heterozygous condition, it will be called a case of carrier. तो ये वाली कंडीशन है जिसमें ऑफस्प्रिंग में एक पेरेंट से एक डोमिनेंट जीन
इनहेरिट हुआ, एक दूसरे पेरेंट से एक रिसेसिव इनहेरिट हुआ। सो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, इसमें दिस पर्सन विल बी कॉल्ड अ कैरियर, यानी ही और शी इज कैरिंग अ रिसेसिव वन, बट दिस विल नॉट बी फीटल। नाउ अब वो जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है, जो हमने देखा है कि फॉर दैट इनहेरिटेंस टू हैपन, होमोजाइगस रिसेसिव शुड बी देयर, यानी टू रिसेसिव शुड बी देयर। और उसके लिए हम देखते हैं पनेट स्क्वायर। नाउ पनेट स्क्वायर ये एक चीज है, अ, जैसे अब किस कंडीशन में अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं, अगर वो कैरियर्स हैं और दोनों के दोनों हेल्दी होंगे, बिकॉज कैरियर के अंदर जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, और यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, वो रिसेसिव है, यानी वो तभी एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस हो, दोनों कॉपी हो। सो ऐसे में जो हेट्रोजाइगस है, जिनके अंदर एक भी डोमिनेंट है, तो वो हेल्दी है। लेकिन ये सिचुएशन जो है उस टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब दोनों पेरेंट्स जो दोनों कैरियर्स हों, दोनों हेट्रोजाइगस हों, तो यानी जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से रहेगी कि एक चाइल्ड जो है, दैट चाइल्ड will be homozygous dominant. The second child will be heterozygous dominant. The third child will again be heterozygous dominant, but the fourth child will be homozygous recessive. So the risk is, first, 25% चांस, यानी 1 out of 4, चार बच्चे हैं उनमें से 1 out of 4 will have the disorder, will have this homozygous condition. Then 50% will be carrier, यानी ये heterozygous dominant. So 50% यानी 2 out of 4, 1 out of 2, ये जो है they will be carrier, they will be healthy, but उनके अंदर भी ये recessive रहेगा. Then 25% चांस जो है ये वाले कि the child will be unaffected. So that's how this autosomal recessive works. Again, we are talking about the autosomal inheritance, which means this inheritance will happen on those 23 non-sex chromosomes, and in that way, it will affect both male and females equally. Now, example, first, cystic fibrosis, which is a lung and digestive disorder. Now, this mutation, CFTR gene. So, this gene, this disorder is a recessive one. यानी ये ऑफस्प्रिंग को कैसे अफेक्ट करेगा? ओनली इफ बोथ द कॉपीज ऑफ रिसेसिव exist or inherited in that offspring. Otherwise, अगर एक भी dominant रहेगा तो the offspring will remain healthy, but they will also carry this recessive one. So the CFTR gene, a recessive disorder, and again, carriers will not have any symptoms, but then this thing, it can go in for families for generations. Now this second thing, sickle cell anemia. So again, sickle cell जो है ये भी is a recessive disorder, यानी अगेन दोनों रिसेसिव्स होंगे, ये वाली कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी जो जो ऑफस्प्रिंग है, he will suffer from the fetal condition like leukemia. But the heterozygous one, इस वाले सिकल सेल एनीमिया में जो हेट्रोजाइगस होंगे, सो दे विल बी कैरियर्स एंड हेल्दी. तो ये दोनों एग्जांपल देखिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है. नाउ क्विक समरी. सो दिस ऑफन स्किप्स जनरेशन, जो हमने पनेट स्क्वायर में देखा कि जैसे एक कॉपी है जिसके अंदर ये सिम्टम जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा. फिर अगेन ऑटोसोम्स में है तो मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड. देन अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड इफ बोथ आर कैरियर्स. सो वो हमने देखा ही कि अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं, इफ दे आर कैरियर्स, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सो दोनों हेल्दी हैं, बट उनके एक जो है चाइल्ड में 25% चांसेस हैं कि 1 out of 4 चिल्ड्रन विल हैव दिस कंडीशन. फिर we are going to proceed to autosomal codominance. Now, codominance is a special type of inheritance when both the alleles are equally and fully expressed.
तो इसमें हमने देखा है कि दैट डोमिनेंट रिसेसिव थिंग इज नॉट देयर, द मास्किंग इफेक्ट इज नॉट देयर। यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रेट्स जो हैं दे अपीयर साइड बाय साइड इन द फिनोटाइप। क्योंकि इससे पहले देखा है कि दिस कंडीशन कि डोमिनेंट होगा तो वो एक्सप्रेस होगा, द रिसेसिव वन विल बी मास्क ऑफ। बट इन दिस कंडीशन दो दो जीन्स हैं, दोनों कॉपी जो है दे विल इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई दिस को डोमिनेंस कि दोनों डोमिनेंट हैं। फिर एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो यहाँ पे द सिंगल जीन विल हैव थ्री अलील्स। सो फर्स्ट IA फॉर ए एंटीजन, IB फॉर बी एंटीजन, एंड देन I फॉर नो एंटीजन। सो अगर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर ये वेरिएशन होता है, IA फ्रॉम वन पेरेंट, IB फ्रॉम द सेकेंड पेरेंट, तो यहाँ पे अब जो एक्सप्रेशन है वो उसके हिसाब से नहीं। जैसे पहले हमने देखा है कि ये वाला, अगर द डोमिनेंट वन वाज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, द रिसेसिव वन वाज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि द डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस, और इसका जो इफेक्ट है इट विल बी कवर्ड, इट विल बी मास्क्ड ऑफ। लेकिन यहाँ पे कोडोमिनेंस के अंदर कौन से इनहेरिट हो रहे हैं, किस पेरेंट से इनहेरिट हो रहे हैं, डजेंट मैटर, दोनों के दोनों एक साथ इनहेरिट होंगे। सो अगर ये कंडीशन है IA IB वाली, यानी जो जो ऑफस्प्रिंग है विल हैव AB ब्लड ग्रुप, और यही कंडीशन जो है ये यू नो दोनों एक साथ रिफ्लेक्ट होंगे। सो आप इनके जितने भी वेरिएंट्स हैं AB ब्लड ग्रुप में, वो सब ऐसे ही इसी तरह से वो वेरी करते हैं, इसी तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर एक पेरेंट से IA इनहेरिट हुआ है, सेकंड पेरेंट से I इनहेरिट हुआ है, देन द ब्लड ग्रुप विल बी A. Similarly, IB and I, the blood group will be B, and if both recessive I's are inherited, then the blood group will be O. And that's how this whole thing work. और आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, और जो तीनों अलील हैं, तीनों अलील में जो भी कॉपी इनहेरिट होती है इट विल कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट ऑटोसोमल कोडोमिनेंस इज। सो ये सब तो बता दिया। बोथ अलील जो है दे इक्वली एक्सप्रेस, एंड फिनोटाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेट्स। कोई भी जो है नो मास्किंग इज देयर, नो सप्रेशन ऑफ वन अलील बाय अनदर इज देयर। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज द सेक्स लिंक्ड वन। अब इसमें क्या होता है कि द म्यूटेशन और द डिसऑर्डर वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट डिसऑर्डर मस्ट बी सेक्स लिंक्ड, यानी ये किसी पर्टिकुलर सेक्स रिलेटेड है, मेल या फीमेल से, ठीक है, पर्टिकुलरली द एक्स क्रोमोसोम। तो इसके अंदर तो ये आप जानते हैं कि जो मेल है दे आर XY एंड फीमेल हैव 2X। सो यहाँ पे नो आप देख सकते हैं कि हु विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि मेल के अंदर एक ही X है, फीमेल के अंदर 2X हैं। सो ऐसे में अगर वो डिसऑर्डर्स इफ इट इज X लिंक्ड, X क्रोमोसोम लिंक्ड, देन मेल विल सफर मोर। और फीमेल के अंदर एक कॉपी है, so female usually they make such copy inactive. Now let's move on to X-linked recessive inheritance. तो दो चीजें एक साथ है जो आपको समझना है। फर्स्ट, जो डिसऑर्डर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज X क्रोमोसोम लिंक्ड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेसिव इनहेरिटेंस। यानी फर्स्ट दिस इज अबाउट द म्यूटेशन और द इफेक्ट ऑन द X क्रोमोसोम, और जो अभी आपको बताई कि दिस विल अफेक्ट द मेल्स मोर बिकॉज दे हैव ओनली वन कॉपी ऑफ X। एंड देन इफ इट इज रिसेसिव इनहेरिटेंस, देन ये म्यूटेशन या फिर ये डिसऑर्डर ये मेल को तभी अफेक्ट करेगा जब दोनों कॉपी होंगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन ऑन X chromosome, then since male have one chromosome, so single faulty gene is enough to cause the disorder। लेकिन फीमेल की वजह से फीमेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, so they usually act as a carrier। फिर ये जो बेसिक्स हैं ये भी आपको बता दिए, मेल्स X म्यूटेशंस, नो सेकंड X टू कॉम्पनसेट, क्योंकि ये जो फीमेल के अंदर ये X इनएक्टिविटी पैटर्न होता है कि दो X होते हैं, मेल के अंदर एक ही X है। तो जो बहुत सारे X लिंक जीन्स होते हैं वो दोनों में फीमेल के अंदर डबल एक्सप्रेस ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए फीमेल जो होता है उनके अंदर
एक एक्स जो है उसको इनएक्टिव कर देते हैं। सो इस सेम कंडीशन में अगर वो म्यूटेशन वो एक फीमेल के अंदर एक एक्स पे होता है, सो ऑलरेडी बायोलॉजिकली या इवोल्यूशनरीली उनके अंदर ये एक पैटर्न है कि दे कैन मेक वन कॉपी ऑफ एक्स इनएक्टिव। सो उसमें वो जो म्यूटेशन है उसी को इनएक्टिव कर देंगे। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स है। सो अगर उस पर डिसऑर्डर होता है तो देन इट विल एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीमोफीलिया है। सो हीमोफीलिया कंडीशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। एंड अदर सिम्टम्स प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, जॉइंट डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, देन ये हमारे काम का कॉमन इन मेल्स। सो मेल्स आर मोर अफेक्टेड बिकॉज फीमेल के अंदर जो अदर जो रिसेसिव एक्स हैं इट विल बी मेड इनएक्टिव, लेकिन मेल ऐसा कर नहीं सकते तो दे विल बी अफेक्टेड। फिर एक फेमस केस स्टडी है द डिसेंडेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया। सो दे पास हीमोफीलिया इनटू रॉयल फैमिलीज। फिर द सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन। सो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। फिर इसमें रेड एंड ग्रीन ह्यू जो है उसमें या उसके पैटर्न में फर्क नहीं बता सकते। सो अगेन दिस कंडीशन अफेक्ट मेल्स मोर, क्योंकि एक ही एक्स है, अगर उसके एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो यानी मेल को ज्यादा अफेक्ट करेगा। फिर समरी। सो फर्स्ट थिंग, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। यस, ये मैं पहले बताना भूल गया कि यहाँ पे फादर कैन नॉट पास हिज एक्स क्रोमोसोम टू हिज सन, ओनली टू डॉटर्स। सो ऐसे में मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है। फिर देन मेल्स दे पास their faulty genes to all their daughters who became carriers। तो फीमेल जो है वो यूजुअली कैरियर रहेगी, क्योंकि फीमेल के पास दो क्रोमोसोम्स हैं और नेचुरली दे कैन मेक वन ऑफ देयर एक्स इनएक्टिव। उसका एक डिफरेंट पैटर्न है, बट असल में इन दोनों में से कौन सा एक्स, दो एक्स में से कौन सा एक्स इनएक्टिव होगा, उसका भी ये मैकेनिज्म है कि जिस भी एक्स में कुछ म्यूटेशंस हो, विच एक्स द अदर एक्स विच इज नॉट नेसेसरी, वो जो है इनएक्टिव कर दिया जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। सो फीमेल के अंदर यूजुअली जो इनएक्टिव हो जाएगा तो वो कैरियर रहेगी, बट अदरवाइज दे विल बी हेल्दी। लेकिन मेल्स को ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। फिर लेट्स मूव ऑन टू सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस। तो इस वाले में क्या होता है कि नो, जीन इज नॉट सेक्स लिंक्ड, किसी सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक नहीं है, एक्स या वाई पे डिपेंडेंट नहीं है, बट द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो आई से इट अगेन कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑटोसोमल जीन। नाउ द ऑटोसोमल जीन विल एक्सप्रेस differently on the basis of the biological sex of the individual। मेल के अंदर है तो वो डिफरेंट करेगा, फीमेल के अंदर डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंसेस, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे एग्जांपल द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो बहुत सारे आदमी जो है वो गंजे हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो बॉल्डनेस जो है it is genetically inherited but hormonally driven। We are talking about disorder that recedes the hairline। so जो hair loss है, जिस डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ये हेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्स है, मेल या फीमेल, टेस्टोस्टेरोन है या फिर एस्ट्रोजन है। सो यहाँ पे क्या होता है, इन मेल्स दिस जीन फॉर हेयर लॉस इट बिकम्स डोमिनेंट, और डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा, जो अभी हमने शुरू के लेक्चर में देखा है कि अगर जीन डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा ही। सो मेल में जो हेयर लॉस जीन है इट बिकम्स डोमिनेंट, तो उसकी वजह से मेल के अंदर सिग्निफिकेंट हेयर लॉस होता है, जो बाल उतर जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर यही सेम जीन जो है इट बिहेव्स एज रिसेसिव। सो ये आप पैटर्न देख रहे हैं, और वो जो पैटर्न है इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंसेस। मेल के अंदर हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी वजह से ये जीन जो है इट कैन नॉट मास्क ऑफ द रिसेसिव फैक्ट, सो उसकी वजह से एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लो होता है, उसकी वजह से
ये इसका एक्सप्रेशन रिसेसिव हो जाता है। रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, यानी दोनों कॉपी रिसेसिव होनी चाहिए तभी वो एक्सप्रेस होगा। सो इसीलिए फीमेल के अंदर जो हेयर थिनिंग होती है या बॉल्डनेस होता है वो कम होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेक्स क्रोमोसोम लाइक टेस्टोस्टेरोन दे कैन इन्फ्लुएंस हाउ स्ट्रांगली अ जीन इज एक्सप्रेस्ड। फिर की फीचर्स, द जीन इज ऑटोसोमल, यानी जीन जो है वो ऑटोसोम्स पे होता है, 22 नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है, बट उनका एक्सप्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के सेक्स पे। और जो इस एग्जांपल में देखा हो कि पर्टिकुलर बॉल्डनेस के अंदर द सेम जीन इट बिहेव डोमिनेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हायर टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, बट फीमेल के अंदर बिकॉज ऑफ द लोअर टेस्टोस्टेरोन ये जीन जो है रिसेसिव बन जाता है। यानी मेल के अंदर अगर एक भी कॉपी है तो इट विल एक्सप्रेस एंड दैट्स व्हाई मेल गो बॉल्ड, लेकिन फीमेल के अंदर ये रिसेसिव हो जाता है, यानी दो कॉपी चाहिए। और जिन फीमेल के अंदर एक ही कॉपी होती है तो सिर्फ हल्की फुल्की हेयर थिनिंग होती है, बाकी अदरवाइज दे डू नॉट गो बॉल्ड। सो दैट्स यू नो सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस। फिर आगे देखते हैं सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। तो इसकी कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस जैसी। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस के अंदर फीमेल के अंदर ये जो बॉल्डनेस का जो जीन होता है इट इज रिसेसिव वन, यानी फीमेल के अंदर अगर दो कॉपी हो जाए, दोनों कॉपी फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, देन फीमेल के अंदर ये रिसेसिव जो है एक्सप्रेस हो जाएगा। यानी कुछ फीमेल जो है उनमें जो विजिबल बॉल्डिंग होती है, विजिबल हेयर लॉस होता है, वो इसी कारण होता है। बहुत रेयर कंडीशन है, बट कुछ फीमेल्स के अंदर भी रिसेसिव हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा, इट्स जस्ट दी वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। मेल के अंदर अगर ये होता है, ये जीन होता है, तो देन इट विल एक्सप्रेस, लेकिन फीमेल के अंदर ये तभी होगा जब दोनों कॉपी होगी। ये सेक्स इन्फ्लुएंस होता है। बट सेक्स लिमिटेड के अंदर जो पर्टिकुलर जीन जो है, पर्टिकुलर ट्रेट है या डिसऑर्डर है, वो एक ही सेक्स के अंदर एक्सप्रेस होगा, दूसरे के अंदर वो कंप्लीटली ऑफ होगा, कंप्लीटली साइलेंट होगा। सो इसमें ये स्टोरी है कि उस जीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रेट की या डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, दैट एग्जिस्ट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों में है, बट द एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द सेक्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, सेक्स स्पेसिफिक हार्मोन्स, कि मेल है या फीमेल है, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है। सो अगेन सेक्स लिमिटेड है, यानी the traits they are located on autosomal genes, they are controlled by autosomal genes, लेकिन उनका एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। बस फर्क इसमें यही है सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस में, कि सेक्स इन्फ्लुएंस के अंदर वो एक्सप्रेस होगा, बट वेरिएशन इंटेंसिटी मैटर करती है, डिफर करती है। बट सेक्स लिमिटेड में इस वाले केस के अंदर दूसरा जो सेक्स है उसमें ये जीन कंप्लीटली साइलेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है। अब मिल्क प्रोडक्शन के लिए जीन जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होता है, बट इट इज एक्सप्रेस ओनली इन फीमेल्स। सो ये आप जानते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, द फीमेल सेक्स। लेकिन अब यहाँ पे मेल के अंदर इवन दो दिस particular gene is present, but it is completely silent, it is completely switched off. So ये फर्क होता है सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस में। वहां पे रिसेसिव अगर हो गया तो फीमेल के अंदर भी वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन यहाँ पे वो कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी आइदर डोमिनेंट वन, हेटेरोजाइगस वन या रिसेसिव वन, किसी में भी हो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। फिर सेम बियर्ड ग्रोथ इन मेल। सो जो जीन फॉर फेशियल हेयर ग्रोथ, ये दोनों सेक्सेस में होता है। दोनों के जो बॉडीली हेयर होते हैं वो दोनों सेक्सेस में होते हैं, दैट्स नेचुरल। लेकिन जो थिकनिंग है, थिक बियर्ड्स हैं, वो सिर्फ मेल्स के अंदर होती है, स्पेशली आफ्टर प्यूबर्टी, और वो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे वो उसका कोई इंटेंसिटी मैटर नहीं कर रही है, इट्स जस्ट मेल विल हैव मोर बियर्ड एंड फीमेल
even though that gene exists, दोनों में exist करता है, but that gene remains completely inactive. So ये आप समझ गए कि सेक्स लिमिटेड किस तरह से है. And the difference between sex influence and sex limited, कि इसके अंदर one gene that depends on the sex of that individual, it completely shuts off. Now key features summary. The traits, they are limited to one sex, that's why the name sex limited. और जीन दोनों में होता है लेकिन एक के अंदर वो completely साइलेंट हो जाएगा. फिर PYQ इनसाइट्स. सो यहाँ पे अब एक और चीज़ है, बिकॉज 2012 के बाद यूजीसी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछती है और मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो लिख नहीं सकता, तो मैं यूजुअली उनकी एक जिस्ट बना लेता हूँ. सो व्हाट यू हैव द listing of gists of various questions at the broader level, a pattern kind of gisting. Now जैसे यूजीसी जो है it asks basic definition and core concept like autosomal dominant inheritance. फिर match the following questions में the recognition of trait inheritance like for hemophilia, AB blood group, milk production, sickle cell anemia. So मैं आपको उस टाइम बताया था कि जो inheritance में डेप्थ नहीं है, सिर्फ मैच द फॉलोइंग में ये है कि ये किस टाइप का है, हीमोफीलिया किस तरह का है, AB ब्लड ग्रुप जो है वो को ऑटोसोमल डोमिनेंट वन का है कि को डोमिनेंट वन का है कि इस तरह से. फिर also analyzes how traits pass across generation, जो पनेट स्क्वायर से बताया था. Then X-linked inheritance, it often examined through scenario-based questions कि carrier mother and normal father have children, so what's chance that son is affected by X-linked disorder? So again वो आपको इस तरह से कर लेना है पनेट स्क्वायर. So इसमें जो this side for mother, this side for father, and a carrier mother यानी heterozygous mother and a normal father यानी dominant father. So ये कंडीशन होगी जो आपको समझनी है. नॉर्मल फादर यानी कैरियर, और नॉर्मल में आप समझ गए कि नॉर्मल तभी होगा जब उसके अंदर कोई रिसेसिव वन नहीं होगा, और रिसेसिव ना होने की एक ही कंडीशन है कि जब दोनों डोमिनेंट हो. देन जो कैरियर है वो तब होगा जब वन रिसेसिव इज देयर. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चिल्ड्रन है, this one dominant, this one also dominant, this one heterozygous, this one heterozygous. So all of them will be healthy, but the 2 out of 4, yani half of the children, 50% children will carry the disorder. फिर assertion reason AR questions हैं which are about male pattern baldness है, if it is sex influence है. फिर co-dominance, यूजुअली AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो भी आपको पता है IAIB जीनोटाइप जो है IAIB, इट विल बी फॉर AB ब्लड ग्रुप. IAIB दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे. ऑटोसोमल कोडोमिनेंस, सो ये AB ब्लड ग्रुप है. देन if one gene inherited from one parent is IA and then other I, then this will be one will be A blood group. If IB and I is there, then this one will be B blood group. If both I's are there, then this one will be O blood group. So this is it. एक brief overview ले लेते हैं. So Mendelian inheritance, especially जो हमने पढ़ा, it is about how traits are passed from one generation to the next. Then dominant traits, which the autosomal one, which means the genes are located on the 22 autosomes, the non-sex chromosomes. Then if the disorder or the trait we are talking about, if it is dominant, then it will express and only one copy is required. So that's why this condition, homozygous dominant and heterozygous dominant. Now दोनों में अगर dominant है तो सिर्फ एक कॉपी की जरूरत है, लेकिन recessive one है, autosomal recessive trait है, then this will need 2 copies. फिर कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों ये एक साथ फुली एक्सप्रेस होंगे जैसे AB ब्लड ग्रुप में होगा, इसमें कोई मास्किंग इफेक्ट नहीं है. देन X-linked traits which is like hemophilia, they affect males more because they are located, the disorder is located on X chromosome, और मेल जो है उनके अंदर एक ही X होता है, इसके लिए इसकी वजह से वो जो एक्सप्रेस होगा मेल के अंदर.
मेल एक्सप्रेशन विल बी देयर। लेकिन फीमेल के अंदर 2 एक्स आर देयर, और ऐसे में एक एक्स जो है इट कैन बी मेड इनएक्टिव, इट कैन बी टर्न ऑफ। सो फीमेल के अंदर दे विल बी कैरियर बट अदरवाइज दे विल बी हेल्दी। फिर सेक्स इन्फ्लुएंस के अंदर यहाँ पे the genes will be the trait or gene or disorder, they will be on autosomes, but the expression vary differently for both male and female. So मेल है, मेल जैसे ये एग्जांपल है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, तो इसके अंदर मेल क्रोमोसोम सॉरी मेल हार्मोन्स की वजह से द एक्सप्रेशन विल बी मोर। लेकिन फीमेल के लिए रिसेसिव्स आर नीडेड, 2 कॉपीज आर नीडेड। तो यहाँ पे यही एक्सप्रेशन जो है इसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, अदरवाइज ये दोनों में मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर एक्सप्रेस होते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस। लेकिन जो सेक्स लिमिटेड होते हैं इसके अंदर अगेन जो जीन जो होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में होंगे, लेकिन एक के अंदर ही उसका एक्सप्रेशन होगा, दूसरे के अंदर दैट विल बी टर्न साइलेंट या टर्न्ड ऑफ। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।